Hey guys, welcome to my YouTube channel Biosphere. This is a study with me session. In this video, we will be discussing about chapter 10 microbes in human welfare and we'll look at the subtopic 10.3 microbes in sewage treatment plant, 10.4 microbes in production of biogas, 10.5 microbes as biocontrol agents and 10.6 as a biofertilizers by going through NCERT lines. Also, I will make sure that I cover most of your previous year question asked from these lines in your exam, NEET, AIMS, JIPMER respectively. If you like my this small effort to help you out in biology subject, then you can surely subscribe to my channel. Before starting, there is a small part that last 7 years NEET AIPMT analysis. All these topics that we are today going to discuss, they mainly contribute to 10%, 11%, 16% and 11% respectively, total of 48%. If you look at the last 32-year analysis of NEET AIPMT subtopic analysis for these topics, it shows that these topics contribute to 7%, 12%, 15% and 26% respectively, total of 60%. Means the weightage is really high of these topics, so you should not miss this. Before going further, please take your highlighter and red pen and start marking the important lines. So let's get started. 10.3 microbes in sewage treatment. तो इसमें आपको स्टार्टिंग में लाइन हाईलाइट करते हुए चलना है कि दैट द मेजर कंपोनेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज. And the second, the full form of STP, it's not standard temperature pressure but here it means sewage treatment plant. तो आप STP का full form देखते हुए चलिए. Next is that you should be line highlighting is that the treatment of the wastewater, it is done with the help of using heterotropic microbes. So जो sewage treatment होता है इसमें mainly आपकी दो process होती हैं. The first process is primary treatment and the second one is secondary treatment, और जो कि biological treatment भी जिसको बोला जाता है. तो आप इसको लेके चलिए. फिर आपका जो primary treatment है इसमें 2017 से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो primary treatment होता है it helps in the sewage treatment in removing suspended solid. आपके जितने भी suspended solids हैं they are generally removed by the physical, मतलब फिजिकली उनको रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन. देयर इज दीज आर आल्सो रिमूव विद द हेल्प ऑफ sequential filtration. All the solids that settles form the primary sludge and the supranatant that forms the effluent. Then all the effluent is from the primary settling tank is passed to the secondary treatment, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं. इसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे होते हैं, इस वजह से. फिर आपको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपसे को ये याद रखना है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट का दूसरा नाम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये आपसे 2011 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. तो फिर आपको इसमें लाइन हाईलाइट करनी है दैट द primary effluent that is passed into the large aeration tank, and here the aerobic microbes, these are allowed to grow in vigorous growth is seen for the aerobic microbes, and they grow to form flocs. What are flocs? Flocs are the masses of the bacteria which are associated with the fungal filaments to form mesh-like structures. So this, while growing these microbes, this significantly reduces the BOD. BOD stands for biochemical oxygen demand or biological oxygen demand of the effluent. So the BOD here refers to the amount of the oxygen that would be consumed if all organic matter in 1 liter of water were oxidized by these bacteria. So here you should be mentioning is कि that aerobic bacteria, सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एरोबिक बैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं. देन इसके आगे जो स्टेप्स होते हैं वहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है. फिर इन जो बीओडी होता है आपका, इट इज़ मेनली जो ये टेस्ट होता है इट मेनली मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैंपल ऑफ वाटर, एंड जितना ये इनडायरेक्टली भी बता देता है कि आपका कि वाटर कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है. बीओडी इनडायरेक्टली इज अ मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर. सो अगर बीओडी आपका ज़्यादा होगा तो उसमें पोल्यूटिंग पोटेंशियल जो वाटर का होगा वो भी ज़्यादा होगा. ग्रेटर द बीओडी ग्रेटर द वाटर इज़ पोल्यूटेड. तो ये आपको लाइन हाईलाइट करते हुए चलनी है. फिर आपका एक्टिवेटेड स्लज से आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे ये 2010 में आपसे पूछा गया एक्टिव स्लज के बारे में पूछा गया है. देन आपसे ये 2012 में पूछा गया है इसी के बारे में, तो आपको इसके बारे में देखते हुए चलना है. फिर एक्टिव स्लज में ये होता है कि जो सेडिमेंट आपका जो फ्लॉक्स और बाकी सब ये सेटल डाउन हो जाता है उसको हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं. दैट इज और स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, इसको हम लोग वापस एरिएशन टैंक में पम्प बैक कर देते हैं विच एक्ट एज एन इनोक्यूलम और अ स्टार्टर. फिर जो आपका जो मेजॉरिटी पोर्शन बचता है स्लज का, इट इज़ पम्प इनटू अ लार्ज टैंक विच इज़ कॉल्ड एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर. इस एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में आपके मेनली एनारोबिक बैक्टीरियाज काम करते हैं
दिस एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर, जहाँ पर आपके जो बैक्टीरिया होते हैं दे ग्रो एनारोबिकली एंड दे डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज। जो आपके फंजाई और बैक्टीरियाज डेवलप हुए थे एज अ फ्लॉक्स, तो उन पे काम करके उनको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। एंड ड्यूरिंग द डाइजेशन दे प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेज विच आर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो मिक्सचर ऑफ गैस है इसी को हम लोग बायोगैस या मार्श गैस भी बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपसे 2010, 2011 एंड 2014 में आपसे पूछा गया है कि जो आपकी एनारोबिक स्लग डाइजेस्टर में जो गैस मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है उन गैसेस की नेम, और उन गैसेस को कंबाइनली या कॉमनली हम लोग क्या नाम से बुलाते हैं, दैट इज़ बायोगैस। और बायोगैस हमको पता है दैट वी यूज एज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज़ एन इन्फ्लेमेबल गैस। सो मीथेन को हम बायोगैस की तरह से यूज़ करते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन हाईलाइट करनी है कि दैट द मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड द यमुना एक्शन प्लान। तो आप इस लाइन को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, दैट्स एन एरियल व्यू ऑफ एन सीवेज प्लांट, और आपके दूसरे साइड में एक आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का फिगर दिया है, तो आप इन फिगर्स को देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ 10.4 माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर उन्होंने पूछा है जो कि काफ़ी बार है कि मिथानोबैक्टीरियम से रिलेटेड पूछते हैं। तो जनरली जो आपके बायोगैस प्रोडक्शन में जो आपका बैक्टीरियाज इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कॉमनली मिथानोजेंस बोलते हैं। और मिथानोजेंस का सच एक एग्जांपल अगर आपको याद रखना बैक्टीरिया का, दोस्तों द कॉमन बैक्टीरियम इज मिथानोबैक्टीरियम। तो आप मिथानोबैक्टीरियम्स याद करेंगे। मिथानोबैक्टीरियम्स आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इनका लोकेशन इज इंपॉर्टेंट। कॉमनली दे आर फाउंड इन द एनारोबिक स्लज, जो कि हमने अभी सीवेज ट्रीटमेंट में बात की इसकी। और दूसरा इनका जो है दैट आर फाउंड इन और प्रेजेंट इन द रूमेन विच इज़ अ पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ कैटल। आपके जो कैटल्स होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उसमें भी आपको देखा जाएगा। और ये आपके जो मिथानोबैक्टीरियम्स होते हैं दे डाइजेस्ट द सेलुलोजिक मटेरियल, मतलब सेलुलोज पे काम करके उसका ब्रेक डाउन करते हैं और ये बायोगैस को रिलीज़ करते हैं। तो आपसे मिथानोबैक्टीरियम 2010 में आपसे पूछा गया है अबाउट मिथानोबैक्टीरियम। आपसे गोबर गैस या बायोगैस के बारे में पूछा गया है। देन 2011 में आपसे पूछा गया कि द ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉल्ड मिथानोजेंस दीज आर मोस्ट अबंडेंट इन अ कैटल यार्ड। तब जहाँ पर भी आपके कैटल्स रखे जाएंगे तो वहाँ पर भी ये अबंडेंट अमाउंट में देखने को मिलेंगे। फिर 2012 में आपसे पूछा गया है कि जो गोबर गैस और बायोगैस होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट किसका होता है, तो दैट इज़ ऑफ मीथेन। और फिर आपके जो 2015 में आपसे फिर क्वेश्चन पूछा गया कि दैट्स अ गट्स ऑफ काउज एंड बाफलो पोजेसेस मिथानोजेंस, तो मिथानोजेंस आप याद रखिएगा। फिर आपसे 2017 में मैथ द कॉलम टाइप पूछा है दैट कि मिथानोबैक्टीरियम आर रिलेटेड टू बायोगैस, तो आप इसको याद रखेंगे। फिर 2019 उड़ीसा में आपसे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मिथानोजेंस पूछा गया है। तो ये मिथानोजेंस के लिए आपको याद रखना है दे प्रोड्यूस बायोगैस, दे आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ कैटल, दे ग्रो एनारोबिकली एंड दे प्रोड्यूस मीथेन। तो आपको याद रखना। फिर मीथेन के लिए आपको यहाँ पर एक गैसेस कॉम्पोजिशन भी दिया हुआ है दैट इज़ अबाउट मीथेन एंड CO2 एंड H2S गैस, दीज आर मेनली प्रोड्यूस। एंड यहाँ पर ये जो आपकी जो टेक्नोलॉजी थी इन इंडिया, इट वाज मेनली डेवलप बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, इसका फुल फॉर्म आप देखिएगा। एंड सेकंड वन इज़ KVIC दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो आप इन दोनों को फुल फॉर्म और इनका अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। देन आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स, दैट इज़ 10.5 माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट्स हम लोग माइक्रोब्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके जो पीछे जो मेथड है दैट द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल प्रिडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स। हम लोग जनरली आपके जो फार्मर्स होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि बायो पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड, ये उनको जनरली महंगा पड़ जाता है। तो हम लोग जो नेचुरल प्रिडेशन के मेथड पे डिपेंड होना ज़्यादा सही है कि उसका अगर कोई भी अगर आपके ऑर्गेनिज्म पेस्ट या वीड्स हैं तो उनके जो नेचुरल प्रिडेटर्स अगर वो उनके ऊपर एक्ट करके अगर उनको ख़त्म कर दे रहे हैं तो वो एक बेटर स्टेप है रैदर देन कि आप कोई केमिकल्स को यूज़ करो। तो आपको ये याद रखते हुए चलना है। फिर यहाँ पर आपसे जनरली जो बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपको जो टॉपिक मतलब ध्यान देने वाली बातें हैं वो आपसे ज़्यादातर इन्होंने एग्जांपल्स पूछे हैं कि आप लोग कौन कौन से बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करते हो। तो मैं आपको सारे बायो कंट्रोल्स एजेंट्स को हाईलाइट करवा दे रहा हूँ, देन प्रीवियस ईयर्स में उनको मार्क करवा दूंगा आपसे कौन सा पूछा गया है। तो आपका जो पहला आपको याद रखते हुए चलना है कि दैट इज़ द लेडी बर्ड एंड द ड्रैगन फ्लाइज, दीज आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटोज। आपको पहला एग्जाम्पल ये है। सेकेंड वन इज बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस विच इज़ यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, जो कि हम बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस को BT कॉटन में भी पढ़ते हैं। देन द थर्ड वन इज योर फंगस ट्राइकोडर्मा। Trichoderma species are free living. It's an important topic, so you must be listening it to very careful. Just be careful in listening. So
So the Trichoderma species are free-living fungi that are very common in the root ecosystem, and they are effective biocontrol agents of several plants' pathogens. So the fungus Trichoderma, it's free-living and it is very common in the root ecosystem. These points you should be highlighting. Then comes another, that is the baculoviruses. They are the pathogens that attack insects and other arthropods. It's also previous year line. And the majority of baculoviruses, these are used as biological control agents, are of the genus Nucleopolyhedrovirus. Nucleopolyhedrovirus, in short form we write it as NPV. So these viruses are excellent candidates for species-specific narrow-spectrum insecticidal application. They have no negative impacts on plants or mammals, birds, fish, or even on the non-target insects. तो आपको याद रखना है. फिर आपका एक IPM प्रोग्राम आता है विच स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो आप इसको देख सकते हैं. तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे 2008 में आपसे एक आउट ऑफ द बॉक्स अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि दैट Bacillomyces liliensis proved effective for the biocontrol of nematodal disease in plant. तो आप इसका नाम साइड में नोट कर सकते हो. फिर 2008 में आपसे पूछा गया अबाउट द ट्राइकोडर्मा Harzanium has proved a useful organism for biological control of soil-borne pathogens. That is mainly related to the root ecosystem. फिर 2009 में आपसे पूछा गया कि that the biopesticides that we used are Trichoderma, Nucleopolyhedroviruses, NPV, and the Bacillus thuringiensis. And in 2010, it has been asked that a common biological control agent for the control of plant diseases, Trichoderma. In 2012, they have also asked about the examples of the biological control. So you should be knowing all the example, that is Trichoderma, BT cotton, NPV, ladybird beetle, all these. 2019 में आपसे correct pair पूछा गया of related to the biological agents and its examples. So ये मतलब घुमा फिरा के आपसे यही सब सवाल पूछ रहे हैं इस टॉपिक से. फिर 2019 उड़ीसा में आपसे यहाँ से पूछा गया, ये सारी लाइन्स आपसे पूछी गई about the baculoviruses, that these are species specific narrow spectrum insecticidal application. They have no negative impacts on plants and mammals, birds, fishes, and all these. So you must be knowing all these lines. फिर आपसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आप नोट करके चल सकते हो कि जो हम लोग बायोफ्यूल और बायो इथेनॉल्स में किसका यूज़ करते हैं. तो हम बायोफ्यूल में जट्रोपा का यूज़ करते हैं, तो बायो इथेनॉल में हम जियामेज को यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, दैट इज 10.6 माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स. इसमें मेनली आपको सारे एग्जाम्पल्स को देखते हुए चलना है. जितने भी आपसे इसमें एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं वो आपको सारे देखने हैं. तो इसमें आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में याद रखेंगे. जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग जनरली आपके सारी नेचुरल चीज़ें जितने भी बायो फर्टिलाइजर्स इन सबको यूज़ किया जाता है. हम इसमें कोई भी केमिकल्स को यूज़ नहीं कर सकते. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसमें आपको पूरा नेचुरल मेथड यूज़ करने होंगे. फिर आपका इसमें आपको सबसे पहले जो मेन सोर्सेज फॉर द बायो फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं आपके, दैट कैन बी अ बैक्टीरिया, अ फंजाई, और इट कैन बी अ साइनोबैक्टीरिया. तो आपके इसमें एग्जांपल्स आपको याद करते हुए चलने, सारे नाम सारे आपको एग्जांपल्स बैक्टीरियाज फंजाई के नेम. पहला इसमें है कि दैट द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम. राइजोबियम आपका एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, एंड विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. तो आपको पहला ये एग्जाम्पल बायो फर्टिलाइजर की तरह याद रखना है. सेकंड आपको याद रखना है कि देर आर सम अदर बैक्टीरियाज विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल विच आर फ्री लिविंग. इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये ध्यान देने की, फ्री लिविंग सारे हैं. इनके एग्जाम्पल्स हैं Azospirillum and Azotobacter. Thus, by doing the nitrogen fixation, they increases the amount of nitrogen in the soil. फिर अगला आपका जो फंजाई में है कि दैट द फंजाई में आपको पता है कि एक माइकोराइजा, दैट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द हायर प्लांट इज नोन एज माइकोराइजा. सो मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस दे फॉर्म माइकोराइजा. व्हाट डू द माइकोराइजा, द फंगल पार्ट इन द symbiotic relationship, the fungus, they absorb the phosphorus from the soil and passes it to the plant. So plant having such association, what's the benefit of having such association? So the benefits are that the plant shows resistance to the root-borne pathogens. They also show the tolerance to the salinity and drought, and there is an overall increase in the plant growth and development. So that's why plant is also getting benefit from the fungus. So that's why this relationship also is an example of symbiotic association. आपने अभी तक दो symbiotic association के एग्जाम्पल पढ़े. पहला आपका राइजोबियम था और दूसरा आपका ये माइकोराइजा है. फिर आपके तीसरे जो है आपके हैं साइनोबैक्टीरिया. तो साइनोबैक्टीरियाज में आपको तीन एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, दैट इज एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया. तो आपको याद रखना है. और आपको ये याद रखना है कि जो आपके पैडी फील्ड्स होते हैं वहाँ पर हम लोग
साइनोबैक्टीरियाज को यूज़ करते हैं एज ए इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर्स। हम साइनोबैक्टीरियाज को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो आप इससे कंफ्यूज ना होइएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गीज क्या होती हैं। फिर आपको याद रखना है कि जो एजोला होता है, एजोला एक आपका टेरिडोफाइट का मेंबर है विच इज़ एन एक्वेटिक फन। इट हैज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द एनाबीना। तो आपको ये लाइन्स हाईलाइट करनी है। फिर मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो कि आपसे इस टॉपिक से पूछे गए हैं। 2008 में आपसे पूछा गया कि दैट द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ एलनस इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्रैंकिया। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो एलनस है आपका, ये कि एक नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। सो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के लिए एक एग्जांपल फ्रैंकिया। ये आप अपने एनसीईआरटी 11th बायोलॉजी में आपका जो मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक है, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है उन्होंने, वहाँ पर आपको ये एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर 2010 में आपसे पूछा है दैट द एग्जांपल ऑफ एंडोमाइकोराइजा इज ग्लोमस। ग्लोमस आपने जैसे ही पढ़ा कि आपका ये माइकोराइजा में फॉर्म करता है, मैन जीनस ऑफ दिस फॉर्म माइकोराइजा, तो ये एंडोमाइकोराइजा को बनाता है। फिर आपका 2010 में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग दे जनरली यूजेस बायो फर्टिलाइजर्स। फिर 2010 में आपसे पूछा है कि दैट द कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर इन पैडी फील्ड। तो पैडी फील्ड का आपका जनरली कौन होता है, तो आप ये देखिए। फिर 2011 में आपसे पूछा गया कि एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ यूज एन बायो फर्टिलाइजर फॉर रेजिंग सोयाबीन क्रॉप। सोयाबीन आपका एक लेग्यूमिनस प्लांट है, तो उसके लिए आप राइजोबियम का यूज़ करेंगे। फिर 2011 में आपसे फिर से बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स पूछे गए, डिफरेंट एग्जांपल्स पूछे गए। फिर 2012 में आपसे नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब विच इज एसोसिएटेड विद अजोला इन राइस फील्ड इज तो एनाबीना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर 2013 कर्नाटका नीट में आपसे पूछा है कि द माइक्रोब विच इज़ यूज फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इज बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस। ये प्रीवियसली मैंने छोड़ दिया, तो उसको मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। फिर 2017 में आपसे मिसमैच पेयर पूछे गए हैं अबाउट ऑल दीज एग्जाम्पल्स। फिर 2019 उड़ीसा में भी आपसे बायो फर्टिलाइजर्स का पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स पता होंगे, तभी आप वो आंसर्स कर पाएंगे। अगर आपको ये मेरा स्मॉल एफर्ट अच्छा लग रहा हो अबाउट कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑन ऑल द previous year questions from the NCERTs, then you can surely subscribe to my channel. And if you like my this small effort to help you out, then you can like, comment and share. और आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। And any suggestion about the videos are always welcome to my YouTube channel. Thanks for watching.